class 12. Today we are back with the topic RNA. We had discussed about the DNA, the structure of the DNA, who proposed it, that was about the Watson and Crick's model of DNA, we had heard about it. Today let's deal with the RNA and the different types of RNA which are found in a particular cell. So see, RNA was the first nucleic acid or the genetic material to be discovered. Okay, so which was the first nucleic acid? It was the RNA, the ribonucleic acid, was the first genetic material to be evolved among all. If we are about to discuss or the types of RNA, first type will be written as a short mRNA. The full form of it will be messenger RNA. Okay, it is also known as messenger RNA. Then we have a small t and RNA. This is referred to the transfer RNA. Later on, we will be seeing that this tRNA, which is also known as the transfer RNA, has quite a lot of other names. And then we have the small r RNA, that is, which is known as the ribosomal RNA. Okay, so inside a cell we will be having these three types of RNA, out of which we will be dealing mainly with the messenger RNA and the transfer RNA. Okay, so first of all, let's start with the messenger RNA. We have to understand one thing, that of the total RNA which is present, the least amount of RNA which is available over the total RNA component, that is the messenger RNA. Okay, so it is present in least amount, and that is about 5% of the total RNA which is present is in the form of the messenger RNA. Clear? So why the name messenger given to it? Because this mRNA brings the messages or the information from the DNA. Okay, I have told you the central dogma process, that DNA will be transferring itself into RNA, RNA itself will be transferring it to the protein. So this transfer of the information on the DNA to the RNA, that is the transcription. Okay, so who takes the messages from the DNA and comes for getting involved in the protein synthesis? That is the messenger RNA. Clear? So messenger RNA contains the codes which will code for the 20 amino acids. Each time one type of code will come and they will be sequentially arranging itself to be a polyamino acid chain, which is also known as the polypeptide chain or the protein chain. Now, next thing is that the size of this mRNA is the longest. If I talk about the length of the RNA, the length of the mRNA is the longest. So the length of mRNA is the longest of all, because this mainly involves, because if the mRNA is long enough, and suppose this is the 5 prime and this is the 3 prime,
So obviously it will be having a lot of triplet codons such that each codon will be engaging with an amino acid, and sequentially when all the amino acids will be clubbed together, they will be forming a polypeptide chain. Clear? Tick. So we were discussing about the messenger RNA. First point what we discussed is that it is of the total RNA which is present, this messenger RNA is in the least amount. That is only 5% of the total RNA will be the mRNA, which is also known as the messenger RNA. What it contains? It contains the codons. If I write over here, actually it contains all the different codons, and these codons are responsible for coding the various amino acids. How many amino acids are there? 20. Okay, so like sequentially arranging these amino acids into a polypeptide chain formation. So this is the length of this mRNA will be the maximum. And the last point which we need to remember over here, that since it is a RNA, then what will be the nitrogenous bases? It will be A, U, G and C. There will be a U in place of a thymine which is inside the DNA. So here we will be only finding these 4 types of nitrogen bases. So we can write, though no abnormal nitrogen bases are present. Okay, what we can write? Now there are no abnormal nitrogenous bases. Abnormal nitrogenous bases means any nitrogen base other than these 4 nitrogen bases. Okay, so here all the nitrogen bases will be in the form of AUGC and no one else. Clear? कोई दिक्कत? अच्छी तरह समझिए. हम लोग पढ़ रहे हैं मैसेंजर आरएनए के बारे में. टोटल जो आरएनए है उसमें से सबसे लीस्ट अमाउंट में, दैट इज ओनली 5% ऑफ द टोटल आरएनए जो है वो है अपना मैसेंजर आरएनए. क्लियर? इसका स्ट्रक्चर सबसे लंबा होगा क्योंकि ये क्या करेगा, इसके पास कोडॉन्स है जो अलग अलग अमाइनो एसिड को सीक्वेंस बनाएगा और आपका एक प्रोटीन चेन बनाएगा. तो जनरली इसका जो लेंथ है वो सबसे बड़ा होगा. ठीक, इसके अंदर कोई भी एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेसिस नहीं है. सिर्फ और सिर्फ जो 4 टाइप ऑफ बेसिस आपके आरएनए के अंदर होता है, दैट इज एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन एंड साइटोसिन. ओनली दोज 4 टाइप ऑफ बेसिस आर प्रेजेंट in your mRNA. Clear? Let us see now about the types of the mRNA. Now, if I talk about the different types of mRNA, we will be getting it into generally 2 types. That is, we can name this as monocistronic and polycistronic. Clear? ठीक, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे इसको. मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक. बहुत बार क्वेश्चन आता है नीट के अंदर भी कि मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के अंदर कौन से टाइप ऑफ एमआरएनए पाया जाता है और इसका मतलब क्या है. ध्यान रखिए, सिस्ट्रॉन जो है, सिस्ट्रॉन का मतलब होता है पार्ट ऑफ द जीन जो क्या करेगा, विच विल लाइक अंडरगो ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन अंडरगो करके एक प्रॉपर प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करेगा. ठीक, तो दैट पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर जीन और आरएनए विच कैन अंडरगो ट्रांसलेशन एंड कैन फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन, उसको हम लोग नाम देते हैं सिस्ट्रोन. क्लियर? तो मोनोसिस्ट्रॉन मतलब ओनली 1 पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस कर सकता है. पॉलीसिस्ट्रॉन मतलब मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस कर सकता है. ठीक,
सो जो मोनोसिस्ट्रॉनिक है इसको हम लोग दूसरे नाम देंगे मोनोजेनिक, एंड पॉली को हम लोग नाम देंगे पॉलीजेनिक। क्लियर? तो वही सवाल कि इन दोनों में से प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन से टाइप ऑफ एमआरएनए पाया जाता है और यूकैरियोट्स के अंदर कौन से टाइप ऑफ एमआरएनए पाया जाता है। क्लियर? बहुत आसानी से आप याद रखिए, P फॉर पॉलीसिस्ट्रोनिक, P फॉर इट इज फाउंड इन द प्रोकैरियोट्स। ठीक? तो मोनोसिस्ट्रोनिक किसके अंदर होंगे? इट विल बी प्रेजेंट इनसाइड द यूकैरियोट्स। कोई दिक्कत? क्लियर? सो मोनोसिस्ट्रोनिक mRNA will be present in the eukaryotes and polycistronic mRNA will be present inside the prokaryotes. Now let us discuss about the synthesis. Where is this mRNA being produced? In an eukaryotic cell, and where is it being produced? In a prokaryotic cell. So if I talk about eukaryotes, eukaryotes will have a proper nucleus, and inside the nucleus there will be the DNA. ठीक? तो ये जो mRNA है ये ट्रांसक्रिप्शन से बना था, फ्रॉम द डीएनए ट्रांसक्रिप्ट होके बना था क्या? आपका द mRNA। क्लियर? तो वो कहां पर हुआ? इनसाइड द न्यूक्लियस। तो कहां पर बना? वेयर इज द साइट ऑफ सिंथेसिस? ना यूकैरियोट्स के अंदर दिस साइट ऑफ सिंथेसिस इज योर द न्यूक्लियस। क्लियर? एंड व्हेन इट इज फॉर्म्ड then it comes outside. The mRNA comes through the nuclear pores and then it enters into the cytoplasm, where now translation or this polypeptide chain formation will be taking place. But if I talk about the prokaryotes, prokaryotes will lack a nucleus, so they will be having a nucleoid region which remains suspended in the cytoplasm. So where does this polycistronic mRNA synthesis taking place? It will be taking place inside the cytoplasm of the cell. Okay, clear? Now let us look how this DNA is being converted into the RNA, that is the mRNA. See, first of all, inside the nucleus we will be having the DNA. Here also in the cytoplasm we will be having the DNA. This is your DNA. Clear? Now DNA first of all will get undergoing into the formation of one structure. That structure will be known as the hnRNA. What is it known as? It is known as the hnRNA, or HN stands for heterogeneous RNA. Clear? Because this type of RNA contains expressible regions and non-expressible regions. बहुत अच्छी तरह समझिए, इस चीज को हम लोग और एक बार डील करेंगे जब हम लोग पूरा का पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे अबाउट ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स एंड ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है? और एक बार देखिए, ये आपका डीएनए है। डीएनए कहां पर होगा? न्यूक्लियस के अंदर। तो सबसे पहले डीएनए से आपका एक बार में ही एमआरएनए नहीं बनेगा। किसके अंदर? यूकैरियोट्स के अंदर मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहला डीएनए जो होगा वो आपका बनेगा एक टाइप ऑफ इंटरमीडिएट आरएनए, जिसको हम लोग नाम देंगे द hnRNA और द हेटेरोजिनस आरएनए। कोई दिक्कत? हेटेरोजिनस न्यूक्लियर आरएनए हम लोग इसको नाम देंगे। अब जब हेटेरोजिनस न्यूक्लियर आरएनए अंडरगोज स्प्लाइसिंग, एक एक चीज को हम लोग देखेंगे। अभी खाली याद रखिए कि एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा और उस इंटरमीडिएट फॉर्म से आपका एक प्रॉपर एमआरएनए बनेगा। मतलब एमआरएनए डायरेक्टली नहीं बना, एमआरएनए बनने से पहले एक इंटरमीडिएट फॉर्म बना था।
किसके अंदर? ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। बट यहां पर हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोट्स के अंदर डायरेक्टली द डीएनए इज गेटिंग ट्रांसक्रिप्टेड इनटू द प्रॉपर एमआरएनए। यहां पे प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो यहीं से आपका छोटा सा एक सवाल आ गया कि डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। आपका क्या जवाब हो जाएगा ना? सबसे पहले तो ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स का किसके अंदर होगा? न्यूक्लियस के अंदर। यहां पे किसके अंदर होगा? साइटोप्लाज्म। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो जाएगा न्यूक्लियस जो आपके यूकैरियोट्स है उसके अंदर डीएनए से डायरेक्टली एमआरएनए नहीं बनेगा। एक इंटरमीडिएट स्टेज होगा जिस स्टेज को हम लोग नाम देंगे हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। क्लियर? और ये हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए के अंदर एक्सप्रेसेबल जोन्स जो एक्सप्रेस होगा इनटू डिफरेंट अमाइनो एसिड जो कोड कर सकता है, और कुछ नॉन एक्सप्रेसेबल जोन्स है जो अमाइनो एसिड का कोडिंग नहीं कर पाएगा। तो जो नहीं कर पाएगा वो सारे को मुझे हटाना है, और उन सबको जब हट जाएगा तब मेरा जो प्रॉपर स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज एमआरएनए। उसके अंदर सारे के सारे एक्सप्रेसेबल कोडॉन्स है जो अमाइनो एसिड को कोड कर सकता है। मतलब ये एमआरएनए नाउ कैन गेट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक? बट प्रोकैरियोटिक्स के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर आपका डीएनए है इन द न्यूक्लियोइड दैट इज सिंगल स्टेप ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है एंड इट इज बीइंग प्रोसेस्ड इनटू द एमआरएनए व्हिच कैन डायरेक्टली गेट इन्वॉल्व इनटू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। कोई दिक्कत? ठीक? तुरंत हम लोग एक बार देख लेते हैं। मैसेंजर आरएनए पढ़ रहे थे, सबसे लीस्ट अमाउंट में रहता है ऑफ द टोटल आरएनए दैट इज अबाउट 5%। कंटेन्स कोडॉन्स, ठीक, इन द फॉर्म ऑफ जो हम लोग मैसेज लेके आ रहे हैं, बोल रहे हैं। तो ये मैसेज कहां से लेके आ रहे हैं? इंफॉर्मेशन किसके पास है? डीएनए। तो डीएनए से ये जब बन रहा है तो इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है इसके पास इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन्स, इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड। जिस हिसाब से अमाइनो एसिड बैठेगा इसके ऊपर, है कि नहीं? क्लियर? तो इसका जो लेंथ है वो लेंथ सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट रहता है ऑफ द एमआरएनए। क्लियर? ये दो टाइप के होते हैं, एक तो मोनोसिस्ट्रोनिक या मोनोजेनिक एंड another one is the polycistronic or the polygenic. Clear? Among these two, in prokaryotes, P for polycistronic, P for prokaryotes. तो polycistronic mRNA जो होगा वो कहां पर प्रेजेंट होगा? It will be present inside the prokaryotes. ठीक? और polycistronic का मतलब ही होगा कि it can like form more than one पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है? मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन इसके अंदर फॉर्मेशन हो सकता है, जबकि मोनोसिस्ट्रोनिक के अंदर इट ओनली फॉर्म्स अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है? क्योंकि मोनो के लिए एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन ही आपका ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है? ये कहां पर होगा? न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है जिससे आपका एक इंटरमीडिएट फॉर्म बनेगा द हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। बट यहां पर सिंगल स्टेप में ही आपका साइटोप्लाज्म से आपका एमआरएनए बनेगा। कोई दिक्कत? क्लियर? चलते हैं अब टीआरएनए की ओर और देखते हैं कि टीआरएनए क्या है, ठीक, और किसमें इसका मदद करता है। चलिए, लेट्स बिगिन विथ द टीआरएनए। नाउ टीआरएनए जैसे हम लोग देखे थे कि टीआरएनए को हम लोग ट्रांसफर आरएनए का नाम देते हैं। इसके और दो नाम हम लोग जानने के लिए आपका जरूरी है, दैट इट इज ऑल्सो नोन एज द सॉल्यूबल आरएनए और वेरी वेल नोन एज द एडाप्टर आरएनए। ठीक, तीन नाम से हम लोग इसको जानेंगे। एक तो आपका ट्रांसफर आरएनए, एक सॉल्यूबल आरएनए और थर्ड द एडाप्टर आरएनए। क्लियर? हमें जानना है कि दिस इज प्रेजेंट अबाउट 15% ऑफ द टोटल आरएनए।
ठीक है, टोटल आरएनए के कितने लगभग आपके प्रेजेंट है? अराउंड 15% ऑफ द टोटल आरएनए इज योर टीआरएनए। ना ट्रांसफर आरएनए नाम हुआ तो इसका ट्रांसफर किसको करता है? ना ऑब्वियसली ड्यूरिंग ट्रांसलेशन ये क्या करेगा? इट विल बी ट्रांसफरिंग, इट विल हेल्प इन द ट्रांसफरिंग ऑफ एमाइनो एसिड्स। किसको ट्रांसफर करेगा? एमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर करेगा और करके उसको लेके आएगा किसके पास? एमआरएनए के पास। ठीक है, क्योंकि एमआरएनए के पास सीक्वेंस है कि कौन सा एमाइनो एसिड पहले बैठेगा, कौन सा एमाइनो एसिड उसके बाद बैठेगा। तो वैसे वैसे एमाइनो एसिड्स को ले आने के लिए साइटोप्लाज्म में सारे बिखरे हुए हैं, एक एक को पकड़ेगा और पकड़ के एमआरएनए के पास लेके आएगा जो आरएनए, दैट इज नोन एज द ट्रांसफर आरएनए। क्लियर? यहां पे हम लोग पढ़े थे कि कोई भी एबनॉर्मल नाइट्रोजिनस बेसिस नहीं होगा। आरएनए के अंदर वही AUGC रहता है, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वही 4 आपके बेसिस रहेंगे। बट इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि 4 बेसिस तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा देयर इज ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेसिस। ठीक, एबनॉर्मल क्यों नाम देते हैं? क्योंकि नॉर्मल नाइट्रोजन बेसिस अगर मैं आरएनए के अंदर बात करूं तो देयर इज AUGC। Apart from AUGC, other type of nitrogen bases which are present in the tRNA that are known as the abnormal nitrogen bases। और इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग याद कर सकते हैं जैसे pseudouracil, iodocine, these are all the different examples of the abnormal nitrogen bases which can be present in the tRNA। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, इसके जो एडाप्टर हम लोग बोलते हैं, that is due to the model of या the structure of this RNA। Clear? So that structure is also known as, we will be learning about the clover leaf model। ठीक है, ये क्लोवर लीफ मॉडल किसका है? ना क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ द tRNA हमें बहुत अच्छी तरह पढ़ना होगा। द साइंटिस्ट होली इटैल गेव द क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ द tRNA। क्लियर है? ठीक, टोटल कितने टाइप ऑफ tRNA है? ना लगभग देयर आर अराउंड 60 types of tRNA which is present। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए एक बार देख लेते हैं। हम लोग इस मॉडल को एकदम अच्छी तरह ड्रॉ करके समझाएंगे। उससे पहले एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं क्या क्या हम लोग देखे ना। tRNA को हम लोग 3 अलग अलग नाम से जानते हैं, दैट इज द ट्रांसफर आरएनए, द सॉल्युबल आरएनए एंड द एडेप्टर आरएनए। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट ट्रांसफर्स द अमाइनो एसिड, क्लियर, फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू किसके ऊपर रहेगा? द एमआरएनए के पास वो लेके आएगा। टोटल आरएनए के 15% आपका होता है ये ट्रांसफर आरएनए। इसके अंदर एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेसिस होंगे। ठीक, और कौन से टाइप ऑफ एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेसिस? ना आप 2 नाम याद रखिए, एक तो pseudouracil एंड योर iodocine। क्लियर? ऑल्सो इसका जो एडेप्टर आरएनए हम लोग बोलते हैं, दैट इज ड्यू टू द क्लोवर लीफ मॉडल विच विल बी डिस्कसिंग राइट नाउ। सो हु गेव दिस क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ द tRNA? इट वॉज गिवन बाय द साइंटिस्ट होली इटैल। क्लियर? और टोटल कितने टाइप्स ऑफ आपके आरएनए होते हैं, tRNA होते हैं ना? ये होते हैं अराउंड द 60 टाइप्स। कोई दिक्कत? तो चलते हैं इसके क्लोवर लीफ मॉडल के ऊपर। चलिए अब देखते हैं हम लोग द क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ द आरएनए। ठीक, एक एक करके हम लोग पकड़ेंगे इसको ना। हमें पता है कि कोई भी आपका डीएनए या आरएनए का जो आपका स्ट्रैंड है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड जाएगा। ठीक, यहां पर भी हम लोग वही सेम चीज देखेंगे।
So this is the strand which will be beginning with the 5 prime end. ये आपका होके सबसे पहला लूप, अगेन अ लूप, द सेकेंड लूप, यहां पे एक वेरिएबल लूप होगा, थर्ड लूप, एंड फाइनली ये हो जाएगा आपका द 3 प्राइम एंड. क्लियर? बहुत अजीब सा एक स्ट्रक्चर आपको सामने लग रहा है, ये क्लियर है, बट हमें एक एक चीज बहुत अच्छी तरह पकड़ के देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके क्या क्या पार्ट्स है और हर का इसका सबसे ज्यादा काम रहता है. ठीक, चलिए देखते हैं. तो हमें याद रखना पड़ेगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. सबसे पहले याद रखना पड़ेगा कि 5 प्राइम एंड, ठीक, और जिसके ऑपोजिट 3 प्राइम एंड. 5 प्राइम एंड का जो आपका स्ट्रक्चर होगा, यहां पर एक G रहेगा, दैट इज द गुआनिन बेस. तो ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा? C. ठीक, तो यहां पर आपका CCA एक बेस लास्ट आपका ऑकर होगा यहां पे. ठीक, क्लियर? और ये जो 3 प्राइम एंड है, दिस एंड will be known as the end where amino acids will be attached. ठीक है, क्लियर? तो अमाइनो एसिड्स, अभी हम लोग जो बोल रहे थे कि अमाइनो एसिड्स आपके पूरे साइटोप्लाज्म में रहेगा, वो अमाइनो एसिड्स को ये इकट्ठा करेगा. तो वो कहां पर, कौन से साइट में जाके वो अमाइनो एसिड इसके साथ अटैच होगा? तो अमाइनो एसिड्स विल बी अटैच एट द 3 प्राइम एंड ऑफ द आरएनए. विच आरएनए? टीआरएनए. क्लियर है? ठीक. आप देखिए, ये जो 2 स्ट्रैंड है, ये पैरेलल, एंटी पैरेलल बोल सकते हैं हम लोग इसको. ठीक, क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी एबनॉर्मल बेसिस नहीं है. Only normal bases are present and hence they form complementary base pairs. क्लियर है? ठीक, मैंने क्या बोला ना, ये जो पोर्शंस है, ये पोर्शन में आपके दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हेंस फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा यहां पर. क्यों? क्योंकि इस पोर्शन में कोई भी एबनॉर्मल बेसिस प्रेजेंट नहीं हो रहा है, जिसके वजह से जो एक आपका आइदर A U C G है, तो इधर भी A के ऑपोजिट U होगा, U के ऑपोजिट A होगा, G के ऑपोजिट C और C के ऑपोजिट G. तो यहां पे आपके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स नजर आएगा. क्लियर? अब हम लोग जो पढ़ रहे थे कि इसके अंदर एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, and due to the presence of abnormal nitrogen bases, तो ऑब्वियसली वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना पाएगा, and hence the formation of the loops. क्लियर है? इनको हम लोग क्या नाम देंगे? They will be known as the loops. ठीक, तो हमारे पास आ गया कि लूप का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, आपका क्यों ऐसा क्लोवर लीफ मॉडल के जैसा इसका आपका स्ट्रक्चर बन रहा है. That is due to the presence of abnormal nitrogenous bases. काफी सारे एबनॉर्मल नाइट्रोजनस बेसिस के वजह से वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर नहीं बना पा रहा है, एंड हेंस दे आर फॉर्मिंग दिस 3 काइंड ऑफ लूप्स. कोई दिक्कत? अच्छी तरह समझ में आया? अब चलिए एक एक को पकड़ेंगे. याद रखिएगा, जिस साइट पे आपका द अमाइनो एसिड विल बी गेटिंग अटैच्ड, 3 प्राइम एंड, जस्ट उस पोर्शन के ऑपोजिट एंड, दैट इज दिस लूप, यहां पर आपके 3 कोडॉन्स होंगे, जिसको हम लोग नाम देंगे, एक्चुअली दिस लूप इज नोन एज द एंटी कोडॉन लूप. इसका मतलब क्या है? दिस लूप इज नोन एज द एंटी कोडॉन लूप. समझिए बहुत अच्छी तरह.
सपोज दिस इज योर mRNA. क्लियर? mRNA के यहां पर जो पहला आपका कोड है दैट इज AUG. हमें पता चला AUG पहले हम लोग पढ़ के आए हैं कि दिस इज द इनिशिएटर कोडॉन या स्टार्ट कोडॉन. ठीक? तो ऑब्वियसली यहां पर जो अमाइनो एसिड जुड़ा हुआ रहेगा, द tRNA जो आपका जुड़ के इसको लेके आएगा, दैट विल बी द मिथियोनिन. ये आपका tRNA आएगा. अब इस tRNA आके इसके साथ इसके ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बनाएगा, तभी जाके ये अटैच हो सकता है. मतलब क्या है? ये जो आपका इसका एंटीकोडॉन लूप है, इट विल बी हैविंग द बेसिस एंटी टू दिस वन. तो अगर मैं यहां पर स्ट्रक्चर बनाऊं एक tRNA का, तो इसके पास इसको याद करने के लिए दिस इज योर मेट, द अमाइनो एसिड जो इसको ये लेके आया है. तो इस व्हाट विल बी द कोडॉन इन द tRNA. अगर यहां पे A है तो ऑब्वियसली इसके पास U होगा यहां पे. अगर यहां पे U है तो ऑब्वियसली यहां पे आपका A होगा, एंड G है तो यहां पर C होगा. अब समझ में आया? क्लियर? तो ये जो एंटीकोडॉन लूप है, दिस will be helping this tRNA to attach with the mRNA. कोई दिक्कत? तो therefore they will be having the codons which will be anti-parallel या complementary to the codons which are present on the mRNA. ठीक? तो mRNA में आपका इनिशिएटर कोडॉन क्या है? AUG. काफी बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाए, what is the codon in the tRNA for the first amino acid to be produced, that is methionine. क्लियर? मिथियोनिन पहला अमाइनो एसिड बनेगा, तो उसके लिए एंटीकोडॉन के अंदर, मतलब एंटीकोडॉन जो आपके tRNA के अंदर है, उसका क्या सीक्वेंस है ना हमें पता है. विच लाइक कोडॉन विल गिव मिथियोनिन, दैट इज AUG. तो ऑब्वियसली AUG अगर mRNA में होगा, उसको बैठने के लिए ऑपोजिट रहेगा, तो दैट विल बी UAC, विच विल बी आंसर. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहीं से आपको पता चलेगा. सपोज करिए हम लोग पढ़ रहे थे फिनाइल एलेनिन और हमें पता था UUU. तो सपोज करिए यहां पर अगर आपका कोड है UU एंड U, तो व्हाट विल बी द कोड ऑन इट्स mRNA, सॉरी tRNA. tRNA के ऊपर जो एंटीकोडॉन होगा वो क्या हो जाएगा? इट विल बी अ ट्रिपल A. A पेयर्स विथ U. ठीक? तो यहां पर क्या हो जाएगा? इट विल बी अ ट्रिपल A. कोई दिक्कत? तो ऐसे करके हमें एंटीकोडॉन लूप से पता चलेगा कि वो कौन सा mRNA के ऊपर कोडॉन के साथ वो अटैच हो सकता है. तो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड द एंटीकोडॉन लूप. क्लियर? इट अटैचेस किसके साथ? ना, इट अटैचेस इटसेल्फ टू द mRNA. और ये कब होगा? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. जब ट्रांसलेशन होगा, जब इस mRNA से आपका ट्रांसलेट होके प्रोटीन बनेगा, तब अमाइनो एसिड्स को लेके जो बैठने का काम होगा, वो किसका काम होगा? क्लियर? दैट इज द tRNA. ठीक? अब नेक्स्ट, सर ये प्रोटीन सिंथेसिस जो हो रहा है, अगर मैं पूछूं व्हाट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस? काफी बार आप लोग पहले क्लासेस में भी पढ़ के आए थे कि व्हाट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. कहां पे होगा एक सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस? द आंसर विल बी राइबोसोम. तो ऑब्वियसली ये जो tRNA है, इसको कहीं ना कहीं राइबोसोम को भी पकड़ के रखना पड़ेगा. क्लियर? तो राइबोसोम को पकड़ने के लिए एक अनदर लूप फॉर्मेशन होता है, जिस लूप फॉर्मेशन को हम लोग नाम देते हैं द T-Psi-C लूप. क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? द T-Psi-C लूप. दिस इज नोन एज साई. क्लियर? और ये लूप किस लिए हुआ? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेस साई. ठीक है? ये लूप का काम क्या होगा? इट विल हेल्प इन अटैचिंग the
tRNA molecule with राइबोसोम। और ये भी कब होगा? ड्यूरिंग, राइबोसोम का कब दरकार पड़ेगा? ट्रांसलेशन के टाइम में, ठीक। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। कोई दिक्कत समझ में आया? तो देखिए ऑलरेडी हम लोग अमाइनो एसिड कहां पे बैठेगा वो डिस्कस कर लिए, क्लियर, ठीक। 3 प्राइम एंड, और वो एंड कहां पर होना चाहिए? सी से एंड होना चाहिए, ऐसा कोड होना चाहिए। जस्ट उसके ऑपोजिट हम लोग बात किए एंटीकोडॉन लूप, विच विल बी हैविंग, वही ट्रिपलेट एंटीकोडॉन होगा जो इस कोडॉन का बिल्कुल ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर रखेगा अपने पास, सच दैट ही कैन अटैच इटसेल्फ विथ द mRNA, क्लियर। ये क्या होगा? दिस विल बी द टी साइसी लूप। ये टी साइसी लूप क्या करेगा? राइबोसोम के साथ अटैच करेगा। अब राइबोसोम आपको पता है एक लार्जर सब यूनिट है, एक स्मॉलर सब यूनिट है। तो ये जो आपका राइबोसोम के साथ अटैच हो रहा है, ये जनरली अटैचमेंट होगा टू द लार्जर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम, क्लियर है। तो राइबोसोम का जो लार्जर सब यूनिट होगा उसके साथ अटैच करेगा कौन सा लूप? ठीक, दैट इज योर दिस लूप। कोई दिक्कत? फाइनली अगर हम लोग इस लूप की बात करेंगे, यहां पर इसका एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा ना, ये एंजाइम सीक्रिएट करेगा, विच एंजाइम विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड। कुछ समझ में नहीं आया? दोबारा सुनिए। ये जो लूप है, इस लूप का काम होगा एंजाइम सीक्रिएट करना, जो एंजाइम विल बी स्पेसिफिकली फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ अमाइनो एसिड जो यहां पर आके जुड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा? दिस इज द एंजाइम अटैचमेंट लूप, ठीक, लूप विच क्या होगा? इज स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर अमाइनो एसिड, है ना। तो यहां पर एंजाइम आपके चेंज होते जाएगा, ठीक। इसको हम लोग दूसरे नाम भी देते हैं, इसको हम लोग DHU, इसको हम लोग DHU लूप भी नाम देते हैं। DHU का मतलब क्या है? डाई हाइड्रो यूरेसिल लूप। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग? इसको नाम देते हैं डाई हाइड्रो यूरेसिल लूप। तो चलिए फटाफट एक बार देख लेते हैं टोटल स्ट्रक्चर। तो ये आपका क्लोवर लीफ मॉडल है। तो ये हो जाएगा 5 प्राइम एंड, उसके कॉम्प्लीमेंट्री 3 प्राइम इधर। यहां पर जो ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर हो रहा है, इस हेयर पिन स्ट्रक्चर के अंदर हमें हाइड्रोजन बॉन्ड महसूस हो रहा है। वाई? बिकॉज वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बना रहा है विथ ईच अदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली द नॉर्मल नाइट्रोजनस ग्रुप्स। यहां पर आपके अलग अलग लूप्स बन रहे हैं। क्यों लूप्स बन रहे हैं? क्यों? क्योंकि बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द एबनॉर्मल नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक। अब देखते हैं लूप क्या क्या है ना। यहां पर सबसे पहले जहां पे आपका अटैचमेंट एट द 3 प्राइम एंड होगा, जस्ट उसके ऑपोजिट हो जाएगा द एंटीकोडॉन लूप। ये एंटीकोडॉन लूप के अंदर जो एमआरएनए के अंदर कोडॉन होगा, उस कोडॉन का एक कॉम्प्लीमेंटरी पेयर होगा, ठीक। तो इट विल बी ऑल्सो कंसिस्टिंग ऑफ अ ट्रिपलेट एंटीकोडॉन जो इस कोड को डिकोड करेगा, ठीक। डिकोड करना मतलब क्या है? इसका इंफॉर्मेशन को उससे निकालेगा और निकाल के ये अमाइनो एसिड को यहां पे लगाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका एंटीकोडॉन लूप जो अटैच करता है अपने आप को इस टीआरएनए को विथ द एमआरएनए, क्लियर। नेक्स्ट वी हैव द टी साइसी लूप जो क्या करेगा ना, दिस विल हेल्प इन अटैचिंग द लार्जर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम, क्लियर। तो यहां पे एक एडेप्टर का जैसा काम कर रहे हैं। देखिए 3 एक हाथ से वो एंजाइम सीक्रिएट कर रहा है, उसका जो एक हाथ है उससे वो एंजाइम सीक्रिएट कर रहा है, एंजाइम स्पेसिफिक टू द अमाइनो एसिड जो अटैच हो रहा है। नीचे वाला जो आपका लूप है
उस लूप से आपका वो एंटीकोडॉन सीक्रेट कर रहा है जिससे वो एचआरएनए के मतलब जो एमआरएनए है उसके ऊपर अटैच हो सके, और इस हाथ से वो राइबोसोम, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो चलेगा कहां पे, राइबोसोम में चलेगा, तो इस हाथ से वो राइबोसोम को अटैच कर रहा है। कोई दिक्कत? फाइनली वी हैव दिस लूप जिसको हम लोग नाम देंगे द वेरिएबल लूप। क्या नाम देते हैं इसका हम लोग? वेरिएबल लूप। और इसको आप खाली याद रखिए कि इसका जो फंक्शन है, द फंक्शन इज अननोन। अभी तक इस वेरिएबल लूप का क्या फंक्शन है वो उतना अच्छी तरह पता नहीं चला है। जब पता चलेगा तब हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत? ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट द tRNA एंड द क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ द tRNA। अगर हम लोग बात करते हैं राइबोसोमल आरएनए का, राइबोसोमल आरएनए खाली आप इतना ध्यान रखिए, इसका बहुत ज्यादा आपका कोई उल्लेख नहीं है एनसीईआरटी के अंदर। ठीक। आरआरएनए जितने भी टोटल आरएनए हैं उससे सबसे मैक्सिमम अमाउंट में अराउंड 70 to 80%, यहीं पे बात कर लेता हूं, 70 to 80% ऑफ द टोटल आरएनए विल बी योर राइबोसोमल आरएनए। मतलब लीस्ट क्वांटिटी में था मैसेंजर आरएनए, ये थोड़ा बहुत, और सबसे ज्यादा अमाउंट में रहता है आरआरएनए। ये क्या करता है सर ना, जो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है, ठीक, सो इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। खाली इतना याद रख लीजिए, आपके लिए काफी है। ठीक है। तो आरआरएनए जिसको हम लोग राइबोसोमल आरएनए बोलेंगे, उसका काम क्या होगा? दैट विल बी हेल्पिंग इन द सीक्रिएशन ऑफ और द फॉर्मेशन ऑफ द राइबोन्यूक्लिक या द राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। कोई दिक्कत? ठीक। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर आरएनए, द आरएनए वर्ल्ड। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंसेस। वी हैव कंप्लीटेड द डीएनए, वी हैव कंप्लीटेड द आरएनए, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट the difference in DNA and RNA and how the search of genetic material began। ये जो जेनेटिक मटेरियल है उसको कैसे करके मतलब आपका उसका स्टडी शुरू हुआ था वो हम लोग देखेंगे। ठीक। और हु इज बेटर, आरएनए या डीएनए, ये भी हमें पढ़ना है। तो प्लीज जो जो वीडियोस मैं पोस्ट कर रहा हूं उसको अच्छी तरह पढ़िए, लिख लिख के याद कीजिए, और फिर आपके नोट्स जो मैं दूंगा वो भी आप देखिए। थैंक यू।